of the largest democracy in the world. Nowhere in any other democracy does this system exist. By virtue of being the vice president, you are a part of the executive. And as per the constitution, you are the ex officio chairman of the Rajya Sabha. And by that, you are a part of the parliament. So you have two caps. You have dual capacity. You are a vice president and part of executive, and you are part of the parliament. Sir, everyone knows very well that you are an expert in the constitution. You are thorough with the constitution. For your legal track record is a very good example of that. And now we know, sir, during the intercession period, after you have won the elections, every day you were here in the parliament, attending the office, and now we are sure that you are thorough with the rules of the procedures and rules of conduct in the Rajya Sabha. Sir, we expect a lot from you. We expect you to be impartial. The opposition parties should have the equal share as that of the treasury benches, and the numbers of the members in the House should not decide the quality of the debate. Sir, I have met you twice at your residence and yesterday in the BSc. And both the three occasions have made me to realize, which was very consoling, that you have very great concern for the smaller parties in the parliament. The nominated members, the independent members, and members who represent the smaller numbers in the party. Their party may be bigger outside, but their numbers will be lesser here. So you said that time should be distributed to all of them, and that was a great consolation to all of us, because we were suffering all these days only because of that. Sir, we hope that the coming days would be very bright. Sir, India is the largest democracy, and the parliament is the debating forum. And you asked me when I met you first, what is the way to avoid members to come into the well of the house? So you have inferred rightly what is happening here than what should not. So I told you very simply, if we are heard, we won't be compelled to come to the well of the house. Beautiful. Members of the parliament come here to voice the people, their issues, their concerns. And we are not, when we are not heard or when we are not led to speak, we have to resort to democratic process of coming to the well. That has happened for years together. So, sir, I think whenever we have an issue and we rise to say something, if we are heard for a minute or two, automatically we will cool down since we have let out our feelings. Sir, we have very much hope upon you, sir. And I should say that Maya Angelou, when Mr. Clinton took his office, what she said, the great African-American poet said, sir, with the grace of you, look upon the country, look upon our faces, and simply with hope say, good morning. Every new year dawns with a hope that the next year will be very prosperous. So every day dawns that the day will be very bright. And I wish you good morning every day, sir. And you also please wish us good morning. Not only that, ensure us that the parliament will be very productive in the coming days. And we are very hopeful. And once again, sir, I assure you that DMK will extend its fullest cooperation. Thank you very much. Honorable former Prime Minister Shri H.D. Devgoda. Respected Chairman, sir, I am the only one single member in this house. For the bitter experience from last 20 years, it is very difficult to get an opportunity to speak. The decision made by both the houses, a single member cannot take more than 2 to 3 minutes. That is a bitter experience I had
either in this house or in the other house. Sir, being a farmer, coming from the rural area, I used to take a lot of time on the subject of farming community, on the subject of rural development. But unfortunately, the time fixed only 2 to 3 minutes. This is the bitter experience I have got. May I humbly request you, sir, whenever these issues are going to come, the experience I have got only 2 to 3 minutes. That should be reconsidered when a subject belongs to the rural India or the farming community. Any development thing, I don't want to take unnecessary time of the house. This is only request I would like to make to the Honorable Chairman and the Vice President of India. With these words, I once again thank you very much, sir. If you allow me to speak few minutes more on the issue of farming community and also rural development. This is a humble request, Mr. Vice President and the Chairman of this House. श्री राघव चड्ढा। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफर, जीवन का सफर एक बहुत बेहतरीन सफर रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। इसी के साथ साथ मैं एक कृषि प्रधान सूबे का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनके इस सदन में आया हूं और ये मेरा मानना है कि क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपका परिवार सदैव से खेती और किसानी से जुड़ा रहा है, तो इस देश के किसानों के मुद्दे इस सदन में गूंजेंगे और उनके अधिकारों की बात होगी। इसी के साथ साथ सर, बीते कुछ हफ्तों में जब से आप उपराष्ट्रपति बने, आपने इस सदन के लगभग सारे सदस्यों से एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बनाया है। मुझे भी सौभाग्य मिला 2-3 बार आपसे मिलने का और जो प्यार, जो स्नेह, जो वार्मथ हमें आपसे मिली, मैं आज उसके आधार पे कह सकता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य केवल पार्लियामेंट्री इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी आपसे डिस्कस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, यू आर द एल्डेस्ट इन द हाउस। मैं सदन का सबसे कम उम्र का युवा सदस्य हूं, आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर। उसे ज्यादा प्यार देता है, उसे बोलने का ज्यादा मौका देता है, उससे ज्यादा इंटरवेंशंस देता है, उसके 0 आवर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसके स्टार क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा सर। आपको इस नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। Those whom I love and respect, they suffer the most. Dr. सस्मित पात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घड़ी में जब
हम आपको स्वागत कर रहे हैं। मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे माननीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये आश्वासन के साथ करते हैं मान्यवर कि जो लक्ष्मण रेखाएं हैं हमारी संसदीय विधि व्यवस्था की, वह लक्ष्मण रेखाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कभी लांघने का कोई स्कोप नहीं दिया और हमेशा से एक चीज हम सबको भी कहा है कि जब भी संसद में जाओ मर्यादाओं की रक्षा करो और संसद उचित तरह से चल सके इसका पूरा कोशिश करो। तो ये अवसर मैं लेना चाहता हूं मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में बीजू जनता दल इस सदन में जो गरिमा है उस गरिमा को रखते हुए हमारे माननीय नेता श्री नवीन पटनायक जी के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है उसके साथ हम इस सदन को स्मूथली और सुचारू रूप से चलाने में आपका पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, मैं ये अवसर लेना चाहता हूं ये कहने के लिए दैट यू आर ए डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लॉ हु इज प्रिसाइडिंग ऑन द हाईएस्ट हाउस ऑफ लॉ मेकिंग, एंड एज द डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लॉ प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस ऑफ लॉ मेकिंग, आपकी जो रिच एक्सपीरियंस है, जो वाइब्रेंसी है, वो हम सबको एक अवसर देगा और सीखने के लिए। मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने आपकी इंटेलेक्ट के बारे में कहा, मैं आपके विशाल हृदय के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मान्यवर, कुछ ही दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ सदन में आया था और सदन बंद था तो उनको घुमाने लेके आया था और जब मैं घुमाने लेके आया यहां पर तो मुझे सुनने में आया कि आप चेंबर में हैं, आए हुए हैं। स्वाभाविक तौर से आप अध्यक्ष हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, तो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, प्रोटोकॉल लिया जाता है और उसके बाद आपसे मिला जाता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा आपसे मैं मिला एक दो बार, मुझे लगा कि नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक स्लिप भेजता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, क्या मुझे 30 सेकंड आपके मिल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना विशाल हृदय है कि आपने सिर्फ दरवाजे नहीं खोले, आपका दिल का हृदय खोला, पूरे परिवार को अंदर बुलाया, चाय पिलाई, गपशप करी और मेरे बच्चों को भी आपने इंस्पायर किया। ये बताता है कि किस तरह से आपका हृदय, आपकी सोच सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, उनके परिवारों के लिए है और आपकी जो विश्वास है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस सदन को और आगे लिया जा सकता है, ये इसका एक प्रतिबिंब है। मान्यवर, आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं शांत होकर सुन रहा था। आपने कहा दैट व्हेनेवर देयर इज एनी मैटर, I'll first look to the opposition, then I'll look to the government, and then again I'll look to the opposition. That shows the strength, that shows your commitment, that shows your vision of running the house, sir. I thank you for that. मान्यवर, आखिरी बात कहूंगा, ये सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम उड़ीसा से आते हैं और कई ऐसे विषय होते हैं जो कि सदन में स्टेट्स के बारे में चर्चा होती है। मान्यवर, जब प्राइवेट मेंबर्स की तरह हम लोग आते हैं, हमारे जीरो आवर आते हैं, हमारे स्पेशल मेंशंस आते हैं, कई बार एडजर्न हो जाता है, धुल जाता है मान्यवर। तो एक अपेक्षा यह है कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं, हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता बिल्स पे चर्चा करने के लिए, तो ये जो जीरो आवर्स रहते हैं, स्पेशल मेंशंस रहते हैं, अगर इसमें कोई प्रावधान आप करें जिससे कि रीजनल पार्टीज जो स्टेट से चल के आती हैं इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अपनी आवाज को और रख सके, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सोच है उस सोच को और गरिमा देगा। आखिर में मैं सिर्फ यही करूंगा, उड़िया में दो शब्द कहूंगा कि आपनों को अनेक अनेक स्वागत, अनेक अनेक अभिनंदन, आमर समस्त शुभेच्छा आपनों सहित रही, आपनों सहित रहिबो, आपके साथ हमारी शुभेच्छाएं हैं, आपके साथ हमारा अभिनंदन है और हम आशा करते हैं आपके मार्गदर्शन में हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामदास अठावले। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है,
आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है घर, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है घर, उनका नाम है धनखड। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़। इसमें जरूर सफल होंगे आदरणीय धनखड। हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, उनके ऊपर होनी चाहिए कड़ी एक्शन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन, हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन। हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए फैशन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संघर्ष करते करते यहाँ पहुंचे हैं। गांव से आकर किसान के बेटे के माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए हैं। इसमें आपका अनुभव, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है, बहुत बड़ा वहां चैलेंज था, वहां काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है, इसीलिए आपको यहाँ लाने की कोशिश जरूर हुई है। मतलब आप एक संघर्षशील नेता है। मतलब वहां अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद ये पद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, बंगाल भी अपना ही है, सभी बंगाल के नेता भी अपने हैं, देश का एक वो राज्य है। और कोई भी राज्य हो, यहाँ किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई नहीं होता है। कभी हम भी मतलब 3 बार सांसद रहे लोकसभा में, और मैं शिरडी में मैं हार गया, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं, मैं घूमता रहा। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त है, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त है, कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे दोस्त है, और अभी बीजेपी के मेरे दोस्त है। मैं सब बीजेपी के साथ में आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसलिए आया हूँ कि मुझे शिरडी में हारा गया, मुझे मंत्री ने बनाया, फिर मैं उधर क्या करूं। तो इसीलिए मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा, और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास दिख रहा है सारा प्रकाश। मतलब ये जो प्रकाश दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता में आना चाहिए बताया है, मेरी अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, किसी के साथ मिलकर ही सत्ता में आ सकता हूँ। और मेरे पार्टी का मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, तो भी आप मंत्री कैसे हैं? तो मैंने बोला आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं कैसा मंत्री हूँ। मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देश भर में है, नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी सभी पार्टी है, और मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैं आपको आप मुझे हर बार बोलते थे कि हमको कविता सुनाओ, अगर आप मुझे ज्यादा बोलने के लिए देंगे तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो एक भी कविता नहीं सुनाऊंगा। तो ठीक बात है, तो इसीलिए मतलब कविता सुनाता भी रहूंगा, और आप एक अनुभव है, तो इसीलिए अपोजिशन को भी आप मौका दीजिए, हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, लेकिन एक आधा दिन हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, दूसरे दिन एक्शन होना चाहिए, और हाउस का काम भी मतलब चलना चाहिए।
इसीलिए आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं। इसीलिए मैं मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपको साथ देता रहूंगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर के केशव राव। Thank you very much, sir. First of all, without risking the reputation, I would share the sentiments expressed by all my colleagues regarding your personality and the challenges that this house is going to perhaps throw at you. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ व्यवस्थाएं जब दें तो शांत रहें। उसके बाद सदन आपका है, आपको सदन सबका है। माननीय सदस्यगण, भारत ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है। आजादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है वर्ष 2023 में
आयोजित होने वाले G20 राष्ट्र देशों के शिखर सम्मेलन के साथ साथ G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों के P20 सम्मेलन निश्चित रूप से आजादी के बाद हमारे राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उचित है कि हमने इस सम्मेलन का विषय वसुदेव कुटुंबकम की हमारी पारंपरिक आस्था के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखा है। G20 शिखर सम्मेलन से संबद्ध लगभग 200 कार्यक्रम पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है G20 तथा P20 शिखर सम्मेलन में आपके पूर्ण सहयोग से सफलतापूर्ण आयोजित होगा और भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर समस्त देशवासियों के साथ हमारे सभी देश के जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगरीय विकास, पंचायत राज हो, सभी संस्थाएं इसको उत्सव के रूप में मनाएंगी और हमारा जो प्राचीनतम लोकतंत्र है उसको देश और विश्व के सामने बताने का एक अच्छा अवसर है। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। नहीं देख सकते, ये सरकार सदन की जो विपक्ष के जो अधिकार सब छीन लिया। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 3, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छी परंपरा सदन के पटल के बाद, प्लीज सदन के पटल के बाद, परंपरा सदन के पटल के बाद, नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल के बाद सब माइक शुरू होंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 4, राव साहब दानवे इज अ सीनियर लीडर। कार्य सूची में मेरे सदन नाम के पटल पर बोलते हैं क्या? प्लीज बैठिए। कागजातों को सभा बैठिए। पटल पर रखना। The senior leader, 6th member of parliament, please sit down. Item number 5, Shri Anupriya Singh Patel. With your permission, sir, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name as serial number 5 in today's list of business. Item number 6, Shri Rajiv Chandrasekhar. Sir, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Srimati Darshana Jadosh. Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name, serial number 7 of the Ministry of Textile, as per the today's revised list of business. Item number 8, Shri Som Prakash. Secretary, sir, with your kind permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 8 in this list of business for today. Item number 9, Shri Vidyut Baran Mahato. अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरा नाम के समझ सूचीबद्ध विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 318वें प्रतिवेदन एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 11, Dr. Jitendra Singh. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 360th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests, Climate Change, on demand for grant 2022-23 pertaining to the Department of Science and Industrial Research, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker, sir. Item number 12, Srimati Arunpriya Patel. Sir, with your permission, I move the following motion.
that in pursuance of Clause B of subsection 4 of Section 4 of the Tobacco Board Act 1975, read with Rule 4 of the Tobacco Board Rules 1976, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, 2 members from amongst themselves to serve as members of the Tobacco Board, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder. प्रश्न ये कि श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 श्री बीएल वर्मा जी, बीएल वर्मा जी, शून्यकाल। हाँ, अगर आप सब एक एक करके उठेंगे तो सबको मौका दूंगा, एक साथ उठेंगे तो कैसे मौका देंगे? आप एक एक बोलो, फिर एक बोलो, सब एक साथ उठेंगे, कैसा मौका देंगे? आप क्या बोलना चाहते हैं? आप सीनियर कौन बोलना चाहते हैं? पहले दोनों तय कर लो, पहले एक बार। दोनों नहीं बैठोगे तो दोनों को बोलने दूंगा, तीसरे को बोलने का मौका दूंगा। ये विषय क्या आपका खत्म हो गया? चलो बैठ जाइए। बालू जी आप बोलिए, आपने विषय क्या खत्म कर दिया? बालू जी बोलिए, बालू जी आप बोलिए। Introduction of item number 13, I am objecting. Introduction of item number 13. The cooperation, sir, cooperative movement is any bill enhancement can. जब कोऑपरेटिव का मूवमेंट का बिल आएगा, जब विषय रखना आपको अलाउ करूंगा। बालू जी द सीनियर लीडर। नो, आप बोलिए। हाँ बोलिए आप। सर विपक्ष के लिए सदन में कोई कन्वेंशन होते हैं, कोई प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोई सुविधा की बंदोबस्त रहते हैं। सर आपने सर इतने सालों से चलते आए, जो हमारा परंपरा है सर, ये परंपरा को खत्म करते हुए सारे स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष से छीन लिए हैं अपने, और फिर यहाँ एक भारत एक विश्व एक परिवार की बात हमें सुनाया जा रहा है। सर आपको हमें आईटी, हमारे आईटी ले लिया गया, आपको ले लिया गया, सुदीप बाबू से सर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छीन लिया गया। क्या क्यों ऐसा हो रहा है सर? सर ये परंपरा है। आप सुनेंगे बात, आप कहेंगे कि आप सुनेंगे बात, सर आप कहेंगे कि हाँ आप कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते, लेकिन कन्वेंशन ये हमारा परंपरा है सर। परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर। और चलिए बैठिए। आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इस विषय में एक मिनट बैठिए, कुछ आप सुनिए बात। आप वरिष्ठ सदस्य माननीय, इस कांग्रेस के फ्लोर लीडर भी हैं। कभी सदन के विषय में अध्यक्ष पर कोई आक्षेप किया जाता है क्या? ये परंपरा है क्या? आपने परंपराओं का उल्लंघन किया, आप परंपरा का उल्लंघन किया। अगर आप मानते हैं ये परंपरा का उल्लंघन किया, नहीं किया, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, सदन तय कर देगा। मैंने जो उठाया, आपने सदन की कमेटियों के बारे में विषय उठाया, ये अधिकार, प्लीज आप बैठिए, ये अधिकार अध्यक्ष का है, तो अध्यक्ष के आसन को आपने चुनौती दी नहीं दी? तेरा बुलाइए सर, ये अपनी आपको मैंने मौका दिया, आपको मौका दूंगा। आप बोले, आप बोलिए, आप इंट्रोड्यूस विषय। आपके डबल नेता नहीं बोलते, प्लीज बैठिए। चलिए सुदीप बंदोपाध्याय जी। नो सर, कभी विषय पर टिप्पणी नहीं करते। नो सर, सुदीप बंदोपाध्याय जी, we are not accusing the chair or blaming any way to you.
When I was called by the Parliamentary Affairs Minister himself and MOS that we are not going to give Trinamool Congress any chairmanship. We are second largest party combining Lok Sabha and Rajya Sabha members. I said, it is your decision. They said, yes, we are communicating to you. Sir, we don't want to include your name anyway in this situation. Okay. So Trinamool Okay. Congress has not been given Okay. any chairmanship at any way in spite of second largest party, but we are not begging for any chairmanship from this party. ठीक है। प्लीज, आपके नेता बोलते हुए आप मत बोलिए, प्लीज बैठिए। नो। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मराठीमध्ये मी माझे विचार मांडू इच्छितो. आता अभी थोड़ी देर बाद मराठी में क्या क्या लिख के दो, उसके बाद चले। भर्तृहरि महताब जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, देंगे आपको मौका, देंगे। प्लीज बैठिए, मौका देंगे आपको। भर्तृहरि महताब जी, भर्तृहरि लिख के दो। हाँ, देंगे मौका। ऐसे खड़े हो गए तो कोई मौका नहीं मिलेगा। भर्तृहरि महताब जी, नो, मैं आपको मौका दूंगा, आप भर्तृहरि महताब जी के बाद। ओके, प्लीज। Sir, as per section 21.5 of revamped operational guideline of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, perils like hailstorm, inundation, landslide, cloudburst, natural fire due to lightning have been included under risk scenario of localized calamity. However, section 21.5.10 loss to crops like paddy, sugarcane, jute, and mesta due to inundation are not included as they are considered hydrophilic crops. This provision is not rational as longer duration of inundation, especially at critical growth stage, definitely affect the yield of the crop. Because of such exclusion, the paddy growing farmers who account for more than 95% of the insured farmers are deprived of the benefits of the PM Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. As the matter has been discussed during 6th National Level Monitoring Committee meeting, I urge upon the government to make appropriate changes in the operational guidelines of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. आपको मैं दूंगा मौका, प्लीज बैठ जाइए। आपको मैंने बोल दिया सदन से व्यवस्था दी, दूंगा मौका। आप सुनिए। धनवीर सिंह जी, मेरी लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग है खान्य जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, दादरी के साथ और नारनौल के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में वहां मजदूर काम करता है माइनिंग के अंदर, लेकिन हर रोज बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। तो ईएसआई हॉस्पिटल जहां जहां या तीनों जगह जो क्षेत्र भिवानी जिले में, दादरी में और नारनौल में पड़ते हैं, वहां पर तीनों जगह ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाए जाए। थैंक यू। श्री गणेश सिंह जी। रेल मंत्रालय विंध्य एवं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। यद्यपि यह योजना बहुत विलंब से चल रही है, किसानों की जमीन का अभी तक पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं मिला। ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल मार्ग में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना का रीवा से तुर्की, सतना, नागौर, देवेंद्रनगर, पन्ना तक का मार्ग आता है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के जो आदेश इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेल बोर्ड ने 2010 में किया था, उसी के तहत सतना पन्ना में 1207, सतना रीवा डबलिंग में 469 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सतना पन्ना में 276 आवेदकों को नौकरी दी गई है। जबकि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रीवा सतना डबलिंग में एक को भी अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 2082 लोगों के आवेदन पत्र, 1153 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। शेष आवेदनों में विचार बंद कर दिया गया। मेरे लोकसभा में लगाए गए अतारांकित प्रश्न का उत्तर 171 11 नवंबर 19 को दिया, जिनमें किसानों को भूमि अधिग्रहण की गई जमीन
आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय वापस ले लिया गया। वर्ष 2010 में रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि इस परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। उसी के तहत कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, लेकिन शेष प्रभावित किसानों के बच्चे भटक रहे हैं, उनको नौकरी अभी तक नहीं दी जा रही। एक ही परियोजना में कुछ को लाभ दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। यह न्याय उचित नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत आने वाले सभी जो किसानों के हितग्राहियों की जमीन ली गई है उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। धन्यवाद। लाल सिंह बिसेन। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूरसंचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में भारत देश डिजिटल इंडिया की अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL इंडिया, आइडिया, जियो आदि कंपनियों के मोबाइल टावर लगे हैं, जिनमें कवरेज की काफी समस्या है। विशेषकर BSNL की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी के बालाघाट जिले में एवं सिवनी में ग्रामों एवं सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत समस्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण जनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से टावर बंद रह रहे हैं, साल भर तक इनकी कोई देखरेख नहीं हो रही, सुधारा नहीं जा रहा है। मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस पर संज्ञान न लिया जाना उचित नहीं है। जहां टावर प्रारंभ होते हैं वहां भी कवरेज और डाटा की गति कम होने से अत्यधिक समस्या बनी है। नेटवर्क बंद रहने और डाटा गति कम रहने से बैंकों के काम, छात्रों की पढ़ाई, नौकरी पेशा व्यक्ति और पंचायत का सोसाइटी में राशन वितरण कार्य आदि डिजिटल हो चुके हैं, प्रभावित होते हैं। भारत सरकार डिजिटल इंडिया की अवधारणा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक और जहां 5G के दौर में आ गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL पुरानी 2G और 3G की गति में है। नगरीय क्षेत्रों का भी यही हाल है। इसके पूर्व भी मेरे द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया था। मैं पुनः सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में BSNL की व्यवस्थाएं सुधारे जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बंद सभी टावरों को तत्काल प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, उनको भी पूर्ति करने का कष्ट करेंगे। D. रवि कुमार। Respected Speaker, sir, I would like to bring your kind attention on a very important issue. Despite caste-based discrimination being outlawed in every sphere of life, burial grounds and crematoriums continue to be segregated on the lines of caste. Multiple judgments of the Madras High Court have addressed the issue and directed the caste-based burial grounds and crematorium be abolished. As early as 2008, Justice Chandru had ruled against caste-based burial grounds, and as recently as in 2021 and 22, the same has been reiterated. The cases of B. Kalaiselvi and others versus the District Collector of Kallakurichi and the Muthusamy and others versus B. Venila and others, respectively. Yet, this practice continues to be abound in most parts of the country. In light of the current situation, I request that a nationwide policy for government burial grounds and crematoriums be created and implemented. Article 14 of the Indian Constitution protects the right Mr. to Baluji, equality. you are member of the ruling party. Viषय of the state. Sir, I State subject. Okay. I request the Union government to formulate a policy. This right to equality The exists. ruling party member of parliament. Yeah. It is prevailing in all over the country, sir. In 2014. आपने सब्जेक्ट लिखा तमिलनाडु का। Sir, in आप सब्जेक्ट लिखते पूरे देश का। In 2014, the Karnataka state government have 2022 policy and no 14. Yeah, Okay. 2014 Karnataka. TN Prathapan. They TN Prathapan. Okay. Yes. Okay, TN Prathapan, no? Yes. Yes. Sir, Honorable Speaker, sir. The widening and development project of NH66 in Kerala has been progressing. I have some important concerns of people from project location to convey in front of Honorable Minister Nitin Gadkari ji and Ministry of Road Transport and Highways. There is
genuine concern of people in Chavakad regarding proposed underpass facilities in Mullathara Manathara in Guruvayur Assembly constituency. The proposed project plan has a vehicle underpass of just 25 meters width. It is not practical in a place like Manathara, which is highly populated. Considering the importance of pilgrim Sundays like Manatala Juma Masjid, which is one of the oldest in the country, and very famous Guruvayur Sri Krishna Temple and Palayur Church, which is one of the oldest church in India. This region shall be provided more convenient project plan. A flyover with pillar and wider underpass shall be provided in Mullathara Junction. Otherwise, tourists coming to the beach tourism hub of Trichur Chavakan beach, students around this area and merchants will have to suffer without a proper passage between Mullathara and Manathala. I would like to make 3 similar requests to the ministry. An underpass shall be provided in Mandalamun Center facing existing PWD road. Sir, please. And Edamutam Center in Valapad Grama Panchayat also, we need a provision for an underpass to connect with the service roads. And there shall be a provision for crossing as well as service road in front of the Edakadur Juma Masjid. I kindly request to the ministry to consider these demands. I will submit a detailed project regarding this. Thank you, sir. Rajkomita, no, please. Thank you very much, Speaker sir. Thank you very much, Speaker sir. The coastal Panchayat of Kasaragod. एक मिनट माननीय सदस्य, मेरी उदारता है कि मैं आपको देखकर पढ़ के बोलने की इजाजत दे रहा हूं, नहीं तो इसकी भी परमिशन मुझसे लेना पड़ता है. Thank you very much, Speaker sir. The coastal Panchayat of Kasaragod Lok Sabha constituency, namely Valiyaparamba and Padana of Kasaragod district and Ramandali, Madai and Matur Panchayats of Kannur district currently fall under the coastal regulation zone. Due to the Coastal Management Act, many poor families are unable to build dwelling houses on their own land in coastal zone, and around 1,000 constructed houses and institutions have not been assigned building numbers by the authorities concerned. As per the Coastal Regulation Zone Notification of 2019, the central government has set the non-development zone from the baseline of the islands, causing distress to thousands of coastal residents of Valiyaparamba, Padanda in Kasaragod district, Ramandali and Madai, Matur village Panchayat of Kannur district, who are caught in the entanglement of the CRZ law. In the year 2021, the central government converted 175 panchayats into urban panchayats, and recently in the month of September 2022, the government has issued an order to convert further 66 panchayats into urban panchayats. But it is unfortunate that the above mentioned panchayats in my constituency are not included in any of the exempted lists. Sir, hence I request the Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change to take necessary steps to exempt the above mentioned panchayat of the Kasaragod constituency from the coastal regulation zone. Thank you very much, sir. श्री ईबी ईडन जी, मैं सदन का पहला दिन है, मैं सभी माननीय सदस्यों से ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सदन चले, मर्यादा से चले, हम इनकी अच्छी परंपराओं का पालन करें. मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, पर जो आपने बनाई है वर्षों तक जिसकी परंपराएं, मर्यादाएं, उसका पालन करें और सदन चलना चाहिए. सदन में सबको बोलने का अवसर मिलता है. मैं नहीं सोचता कि कभी किसी ने ये शिकायत की हो कि उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन परंपराओं को कायम रखें. मैं अमर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि जब कोई मेंबर बोल रहा हो ना,
तब बीच में मार्शल को मत बुलाओ, क्योंकि मेंबर के सामने आप बुलाएंगे मार्शल, मेंबर्स और बोलने वालों के बीच में कोई नहीं जाना चाहिए। ये अच्छी परंपराएं बनाई है यहाँ पर, इन सब परंपराओं को अपन पालन करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र की इतनी मर्यादा रहे, मेरा ऐसा व्यक्तिगत आग्रह है सबसे। श्री ईबी डन जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, I am raising a major concern regarding the fishermen community of Kerala in Vizhinjam, where the international seaport was awarded in 2015. The International Vizhinjam Seaport Limited was floated in 2015. Sir, for the last 140 days, the fishermen community of Vizhinjam have been on a huge agitation, mainly because their life and livelihood have been destroyed by the construction of the seaport, which is done by a private group called Adani. Sir, the seaport construction is going on, and in the northern side, there has been huge sea erosion. And 300 families have been living in a cement godown for the last 4 years. Sir, this particular fishermen community have contributed their land ages before for the development of the Vikram Sarabhai Space Research Center, the church, the Bishop House, the cemetery, everything was demolished for the development of such a huge organization, national important organization. So, sir, the development, the agenda the state government is raising, the allegation the state government is raising is that the fishermen community is against the development of the port, which is not right, sir. They have been in touch, and they have given all the support for the development of the port, but the fishermen community's life and livelihood is being disturbed. Sir, a central package should be announced for the rehabilitation. 5,500 rupees was the only amount which was sanctioned for giving rent, sir. Sir, the agitation is over yesterday, but the demands are genuine, which is not yet sorted out by the state government. I would like the central government also to declare a package, because this is a very important port. And sir, a scientific committee has to be taken place. A scientific committee has to be declared where the interest of the local fishermen, the sea erosion, etc., should be studied, sir. Sir, the state government was saying that they would give the Adani CSR fund for the rent, sir, which is not acceptable, sir. Sir, this is a very genuine demand. The central government. श्रीमती चिंतानुराधा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तेजी से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेजी से देश के संसाधन सिकुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ खेती की जमीन सीमित है, आवास की जमीन सीमित है, जल के संसाधन सीमित है, बेरोजगारी बढ़ेगी, रहने की समस्या बढ़ेगी। इसीलिए मेरा ध्यान माननीय गृह मंत्री से है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई परामर्श करके कानून बनाया जाए। पूर्व में भी इस बात की मांग रही है। Thank you, Speaker, sir. Today, I would like to bring to your kind attention an important issue relating to women, sir. Sir, many women experience menstrual disorder and may even suffer from illness related to menstruation, including endometriosis and ovarian cysts, which can disrupt their everyday tasks and cause significant workplace stress, sir, which has been a common ailment in today's life due to many factors. In such a scenario, paid leaves in form of menstrual leaves ensure that women have direct pathways to rest when they need it most, be more productive at work, and as a result find it easier to remain in the labor market. They also encourage more equality by accommodating female workers' biological demands much as maternity leave does. Therefore, through you, I request the Minister of Health and Family Welfare to enforce a 2-day menstrual leave per month for the public and private sectors, which can be taken by employees at their discretion. Acknowledging menstruation as a real need outside of sick leave that warrants being directly addressed in the workplace is long overdue. Doing so will ensure an equitable approach that is bound to open up more job opportunities for women, leading to greater gender diversity in our workforce. Thank you, sir. श्री महेश साहू महोदय, सर आपणक जरिया बारंबार
जातीय राजपथ 55 संपर्क रे आलोचना पर्यालोचना कला परे मध्य अद्यावधि रास्तार उन्नति मंगुली ठारू संबलपुर पर्यंत रास्ता मरामती न होगा फल अद्यावधि 21 जनकर मृत्यु घटिलानी एवं संपृक्त मंत्री महोदय ए बाबद आलोचना पर्यालोचना करी परामर्श देइथिले मध्य अनेक 2022 सुधा शेष हब अनेक 2023 सुधा शेष हब 2024 सुधा शेष हब ए परिप्रेक्षी आपण जरिया केंद्र सरकार को निवेदन करने चाहे ए जातीय राजपथर मरामती एवं निर्माण कार्य केबे सुधा सठिक भाव ठीक हेबो ए बाबद बारंबार आंदोलन धारणा शांतिपूर्ण धारणा कौन प्रकार अर्थनैतिक अवरोध बारंबार कलापर ए बाबद कौन नजर दि जाऊ नहीं मु आपण जरिया निवेदन करने चाहे केंद्र सरकार ए बाबद ठोस पदक्षेप न नेले परिस्थिति भविष्य में अनेक जटिल होबार संभावना अच्छी ए दृष्टिकोण आपन को मु अनुरोध करुछि। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने शून्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर उत्तर प्रदेश में आता है। उसमें एक रेलवे ऊपरगामी सेतु की हमने मांग की थी माननीय रेल मंत्री जी से। ये हमारे सीतापुर गोला मार्ग पर 51A क्रॉसिंग पर एक ऊपरगामी सेतु की आवश्यकता है। संपार फाटक है वहाँ पूरे दिन जाम लगा रहता है। 24 घंटे में 42 से 45 गाड़ियों का आवागमन होता है और शहर के मध्य में वो हमारी रेल लाइन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार करें और आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के माननीय मंत्री जी को पत्र भी दिया था और उन्होंने मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। क्योंकि माननीय सदन में मंत्री जी बैठे हैं, उनका फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस भयंकर समस्या का निदान करने के लिए आप निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे और ऊपरगामी सेतु के निर्माण के लिए आप अपना निर्देश प्रदान करेंगे। धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। Yes, sir. Sir, in this country, lack of employees provident fund pensioners agitating against the enhancement of the EPFO pensions. So, they went Honorable High Court Kerala. After that, they went Honorable Supreme Court. Recently, Supreme Court had given a verdict, but the Supreme Court direction is not implemented by EPFO organization. They are diverting again and again and denied the EPFO pension for the lack of employees, pensioners employees. So I would like to urge upon the government through you, sir, whatever Supreme Court verdict, even Supreme Court verdicts are also partially favor of the employees, not fully favor of the pensioners. But at the same time, EPFO pensioners are no any other option. Honorable Supreme Court verdict is final. So whatever Supreme Court verdict, that should be implemented immediately. This was the legal fight. Years and years, the poor employees, EPFO employees, fighting in the court. Finally, Supreme Court has given a verdict. But at the same time, the government is still, a EPFO organization, EPFO is still diverting, and also they are finding the way to not implement the Supreme Court verdict. So that's why I would like to request the government to immediately intervene, Ministry of Labour, immediately intervene, and the justice should be done for EPFO. श्री भागीरथ चौधरी जी, एसोसिएट। अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे शून्यकाल में अविलंबीय लोक महत्व के मामले में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट से फ्लाइटों का संचालन अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुआ था और उड़ान योजना के तहत किशनगढ़ एयरपोर्ट से देश के 6 शहरों जिसमें स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद एवं मुंबई तथा स्टार एयरलाइन द्वारा इंदौर एवं सूरत की फ्लाइट का संचालन किया जा रहा था। लेकिन स्पाइस जेट एयरलाइन ने उक्त सभी शहरों के लिए अपनी उड़ानों को तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए 31 अगस्त
2022 से बंद कर दिया, जिससे प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता नया एयरपोर्ट आज बंद होने के कगार पर है। अध्यक्ष महोदय जी, पिछले वर्ष सर्दियों में किशनगढ़ एयरपोर्ट से जहां रोजाना 5 से 6 फ्लाइट चल रही थी, लेकिन अब रोज एक फ्लाइट के संचालन को लेकर भी असमंजस है। वहीं दूसरी ओर भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा जारी विंटर समय सारणी में भी किशनगढ़ एयरपोर्ट से नवीन हवाई संचालन नहीं दिए जाने से स्थिति विकट हो गई है। आप केवल मात्र किशनगढ़ एयरपोर्ट से स्टार एयरलाइन के उक्त 2 उड़ानों का संचालन सप्ताह में औसतन 2-2 दिन ही हो रहा है। मान्यवर स्पाइसजेट एयरलाइन को बंद हुए रूटों पर अच्छा यात्री भार मिल रहा था और तीनों उड़ानों के बंद होने के प्रमुख कारण वायबिलिटी गैप फंड बीजीएफ का भुगतान नहीं होना बताए रहे, जबकि सरकार बीजीएफ उसी स्थिति में देती है जब यात्री कम से कम नुकसान हो रहा हो। जब तक कि वायबिलिटी गैप फंड बीजीएफ का प्रावधान सरकार ने कर रखा था, तब तक निजी विमान कंपनियों ने इसका भरपूर लाभ उठाया, मगर जैसे ही सरकार ने बीजीएफ में कटौती प्रारंभ की तो प्राप्त यात्री भार होने के बावजूद सदस्य निजी कंपनी स्पाइसजेट 4 शहरों के लिए उड़ान बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं उड्डयन मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद हवाई उड़ानों को तुरंत चालू कराएं। धन्यवाद। कई मान्य सदस्य लगातार बातचीत कर रहे हैं सदन में। अगर दोबारा बात करेंगे तो नाम लेके इंकित करूंगा। मैंने नाम नहीं लिया अभी। जसवीर सिंह जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ परमजीत सिंह, जगतार सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह, गुरबीर सिंह, गुरदीप सिंह, दविंदरपाल सिंह ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र उदयपुर राजस्थान एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई ऐसे मार्ग हैं जो अभी तक 2 लाइन में ही बने हुए हैं, जिससे काफी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसी के अनुरूप मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्टेट हाईवे नंबर 36 जो उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा तक 2 लेन में बना गया है, इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर 4 लेन में बदलकर उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा रतलाम मध्य प्रदेश तक करवाने का श्रम करावे, जिससे इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आम जनता को एक राष्ट्रीय राजमार्ग का लाभ मिल जाएगा। धन्यवाद। श्री मोहम्मद फैजल जी। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for allowing me to raise a very important issue. The issue is the need of a legislative assembly has been a long cherished and desire of the people of Lakshmi. So that desire has gone into an inevitable part within these years. Sir. The reason why the its people and the elected representative have no say in any of the decisions which is crucial for their existence. For instance, say the new panchayat regulation,
the mass land acquisition, repealing of the land tenancy regulation 2019, stopping of our 15 years perspective plan, the shipping sector, stoppage of the specialty doctor services, welfare scheme for the farmers and fishermen, employment for Lakers. All these issues, people have been protesting in the road for the last so many months, and now there is a continuous relay strike going in the capital city for just a single demand, which we are celebrating the 75th year of our independence, where the people of Lakshadweep do not have that sort of. So my simple submission is that single demand is to have a legislative system where people aspiration are discussed and a consultative mechanism is developed so as to ensure the democratic right of the people. My urge with the Home Ministry is that when we celebrate the 75th year of our independence, let the people of Lakshadweep also enjoy the freedom of self-governance. Thank you so much. Chandrasekhar Sao. Thank you, Speaker sir. Sir, under area expansion for fruit crop and floriculture has been a major component under Mission for Integrated Development of Horticulture under National Horticulture Mission. And under this, 24 districts of my state are covered. In my state, the maximum cost of cultivation per hectare for high density mango is 42,000, sir. Papaya is 60,000. Banana is about 10,263. Bulbous flower is about 1.5 lakh. Cut flower is 1 lakh. And spices crop is 30 to 50,000. Out of which 40 to 50% subsidy is provided to farmers to take up the program. Sir, you can imagine how small farmers of my state get the benefits of this program with the high cultivation cost. Sir, I therefore, through you, request the Honorable Minister and the government to increase assistance under area expansion program so that more farmers, not only of my state, but also of the country, get the benefits of mission and double their income. Thank you, sir. श्रीमती सुप्रिया सुले जी. सर, मेरा आज का 0 आवर किसान विमल योजना पे है, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, मैंने आपका टाइम भी लिया था सर, कि महाराष्ट्र में किसान ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में तो दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न का खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटका राज्य, वहाँ का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सर. और कल तो हद कर दी, कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर, और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर. और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटका के मुख्यमंत्री, और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है. महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटका में भी बीजेपी का है. इसके खिलाफ भी पूरे टाइम में सर महाराष्ट्र कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं. कल पीटे हैं लोगों को सर, पीटा है महाराष्ट्र की जनता को. ये नहीं चलेगा सर, ये देश एक है. और मैं अमित शाह जी से विनती करती हूँ कि ये कुछ बोले सर, ये असत्य बोल रहे हैं. It is in the court, sir. It is the Supreme Court. Please don't allow any member from the Maharashtra to speak on that issue, sir. Sir, these Maharashtrian politicians, especially from the opposition, are habitual offenders when it comes to lingo cultural syndrome है sir. इनका insecurity है sir. जब भी इसका misrule होता है sir, when they are in power, and then where my अध्यक्ष महोदय माननीय सुप्रियाताई सुळेंनी जो विषय मांडलेला आहे, खास करून महाराष्ट्र कर्नाटक हा प्रश्न मागच्या अनेक वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना बेळगाव, कारवार, निपाणी सहित मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार अन्यायाने अत्याचार करते, एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना सुद्धा बेळगाव बंद केलेला आहे. संपूर्ण आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीने एका राज्याच्या मंत्र्यांना आपल्या राज्यामध्ये यायला बंदी करणार हे पहिलं कर्नाटक सरकार आहे. ज्या पद्धतीने कर्नाटकाच्या पोलिसांकडून सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अन्यायाने अत्याचार केला जातोय, त्याचा तर आम्ही धिक्कार करीतच आहोत.
पण त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन महाराष्ट्राची अस्मिता आणि महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांवर तोडफोडचं राजकारण करण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे. कोई का बयान दर्ज नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप बोल रहे हो कुछ भी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आपने ये सेंसिटिव विषय है, अब विषय 2 राज्यों का है, इसमें केंद्र क्या करेगा? नो। 2 राज्यों के विषय में केंद्र क्या करेगा? ये संसद है। नो। राहुल शिवाले, सीपी जोशी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मोदी जी की सरकार बनने के बाद चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र को अनेक सौगातें मिली है जो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिल पाई। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय कि चित्तौड़गढ़ में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 30 बेड का एक हॉस्पिटल दिया गया, जैसा उदयपुर में 100 बेड का दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि चित्तौड़गढ़ में भी 100 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल बने ताकि उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी मात्रा में वहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ कर्मचारी है। तो ऐसे में चित्तौड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बने। और प्रतापगढ़ में सरकार ने ऑफिस तो खोल दिया कर्मचारियों के लिए, लेकिन एक मांग और मेरी सरकार से रहेगी कि वहाँ 6 बेड की डिस्पेंसरी खुल जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वहाँ लाभ मिल सके। और रावतबाटा में आरएबीपी का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ भी अगर एक हॉस्पिटल बन जाएगा लेबर विभाग का तो निश्चित रूप से वहाँ हजारों लाखों हमारे सैनिक भाइयों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पूर्व में ये परंपरा रहा है कि उत्तर पूर्वांचल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो केंद्रीय सरकार है 90% या 80% देती है और उत्तर पूर्वांचल के राज्य 10% या 20% देती है। जब मैंने दरखास्त की रेलवे विभाग से कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में सुंगाजान और टेंगानी में लेवल क्रॉसिंग चाहिए, तो उत्तर आता है रेलवे विभाग से कि पूरा 100% जो फंडिंग है आरओबी या आरयूबी का वो राज्य सरकार से आता है। तो मेरी दरखास्त है कि रेलवे विभाग पुरानी परंपरा के तहत आरओबी और आरयूबी जो उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में है, विशेष रूप से मेरे लोकसभा सुंगाजान और टेंगानी में, उसमें भी 80-20 या 90-10 का प्रतिशत का फंडिंग का व्यवहार करे। धन्यवाद। गिरीश चंद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे संसद क्षेत्र नगीना में एक बसी करतु रेलवे स्टेशन है। कोट द्वार से चलने वाली ट्रेन सिद्धवली जनशताब्दी जिसका नंबर 12037/12038 है, यह बसी करतु रेलवे स्टेशन से होकर पुरानी दिल्ली जाती है। इस क्षेत्र की जनता लगभग 7.5 वर्षों से इस गाड़ी को की बसी करतु स्टेशन पर स्टॉपेज के लिए साप्ताहिक धरना प्रदर्शन भी चला रहा है, किंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस गाड़ी का स्टॉप अस्थायी रूप से इस स्टेशन पर कर दिया जाए। यदि रेल राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई तो स्टॉप को रद्द कर सकते हैं। ये आसपास के रेलवे स्टेशनों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से चाहूंगा कि मेरी मांग है कि जनता की सुगमता के लिए इस ट्रेन को बसी करतु रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज कराया जाए। आपका धन्यवाद। के राम मोहन नायडू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रेल मंत्री जी भी उपस्थित है तो उन्हीं का मुद्दा है। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश रेलवे जोन का जो मुद्दा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। सर, 3 साल पहले चुनाव से पहले रेल मंत्री जी जब पीयूष गोयल जी थे उस टाइम उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस भी किया था, पर अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और उसके 2020-21 में बजट का भी आवंटन हुआ, फिर भी 1 पैसा भी उसके ऊपर खर्च नहीं हुआ। पिछले महीने विशाखापट्टनम प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उस टाइम लोगों में इतनी ज्यादा आशा थी कि जरूर उसके बारे में कुछ बोलेंगे या शिलान्यास करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। सर, तो जरूर एक और बार रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके रेलवे जोन को शुरू किया जाए सर, साउथ कोस्ट रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश। Honorable Speaker, sir, through you, I, on behalf of my party Biju Janata Dal,
urge the centre, particularly Honorable Finance Minister, to withdraw the GST on Kendu leaves in greater interest of the livelihood of lakhs of Kendu leaf pluckers and associated staff. Kendu leaves, a minor forest product, is the financial backbone of about 8 lakhs Kendu leaf pluckers, binders and seasonal workers of Odisha, and mostly belonging to the tribal community and the poorest of the poor of society. The tribal people collect the leaves as part of their right defined under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Right Act 2006. They have the right to procure and sell these products. 18% GST on Kendu leaves is affecting the trade and livelihood of pluckers. The tax needs to be withdrawn for the greater interest of the poor people in Odisha, particularly tribals. This in turn affects the livelihood of Kendu leaves, pluckers, binders, seasonal workers, and also implementation of social security and welfare schemes for them. Our Honorable Chief Minister of the Odisha state has expressed his concern and also written the same letter to the Centre and Finance Minister. Thank you very much, sir. श्री जगन्नाथ जी। देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जो एक अत्यंत लोक महत्व का विषय है, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में इस बार अप्रत्याशित बाढ़ आई, जिसके कारण 21 जनपद के लगभग 2235 गांव बाढ़ से महरूम हो गए। हमारे सिद्धार्थनगर के 580 गांव, जिसमें इस बार पहली बार हुआ, मतलब मानसून सेशन कभी जुलाई अगस्त सितंबर के बाद कभी बारिश नहीं हुई, ये पहली बार अप्रत्याशित बारिश अक्टूबर में हुई और कुछ नेपाल की नदियों का पानी आया, जिसके कारण सड़कें टूट गईं, जिसके कारण एक लगातार 8,730 हेक्टेयर में पूरी फसल खराब हो गई और किसानों के सामने आज ये स्थिति है रबी के लिए। तो मैं मांग करता हूं कि एक केंद्रीय अध्ययन दल जाए, जिससे कि वहां के किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन करके और उन्हें मुआवजा दिया जा सके, क्योंकि जिस तरह से एक अप्रत्याशित नुकसान हुआ, केवल फसल का नहीं हुआ, घरों का हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और रेलवे लाइन पे भी पानी आ गया था, बंधे कई टूट गए, कई सड़कें हो गई। हमारा जनपद कई दिनों से प्रदेश से एक तरह से अलग हो गया था, टापू हो गया था। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल मैं चाहता हूँ कि आप कि केंद्र से उत्तम कुमार रेड्डी। Speaker sir, through you, I wish to bring a matter of urgent public importance to the Government of India. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of 4 coal blocks, Kalyan Kani block, Koyagudam block, Sattupalli block, and Shavanipalli block. These coal blocks are co-located with the existing coal mines of a 100-year-old public sector coal mining company, Singareni Collieries Company, which is a profit-making public sector mining company. It has continuous profits for 20 years. In a very irrational and bizarre decision, the Government of India has announced auction of the coal blocks adjacent to the Singareni mines coal blocks. The Singareni Collieries Coal Company now supplies coal to the thermal power stations of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal blocks to the Singareni Collieries Company, the coal ministry is putting up for auction, which is an irrational and objectionable decision. We demand that the auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allotted to the public sector company, Singareni Collieries. Sir, I'd like to also bring to the government that the Honorable Prime Minister, during a visit to Telangana last month, had promised that they will not be privatized, but still the Government of India is going ahead with the privatization of the coal blocks in Telangana. So Mr. Prahlad Joshi has come. He has replied last time, but he's replied that this is a government decision. Thank you, sir. I rise to speak about shrimp industry of Andhra Pradesh. Whatever honorable member from Telangana has alleged, it is virtually and factually wrong. The auction process is going on from last 2.5 years, and it is the most transparent system which we have adopted. So far, nobody has alleged
anything against the system of transparent system of auction, and this is also beneficial to the state. If state wants, they can participate, and there are many states, for example, where there is no Bharatiya Janata Party ruling. You please listen. No. आप बोलिए. Sir, first of all, I would like to tell about the auction process. You give me 1 minute. Then auction. I will tell. You tell me, please. You tell me whatever is happening. This is the process of through a transparent auction method is happening. And as far as privatization is concerned, 51% is with Telangana government and 49% is with us. How can you privatize it? And see, this is not the question of allocating the coal blocks. It is through auction. Everybody has to participate through auction. This is the system we have adopted now. And sir, I would also like to tell, in many other states, for example, Chhattisgarh, Jharkhand, there also auction is going on. Those governments are cooperating. What is their problem? And entire revenue, sir. Entire revenue through auction, it goes to the state government. The entire auction, it goes to the state government. The people who are in the coal scam, they are talking all these things. इनकी समस्या है कि 51 राज्य को दे रहे हो. जो कोल स्कैम में करोड़ों रुपए का कोल स्कैम किए थे, वो लोग ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं चाहते थे. आपकी सरकार लाओ श्री कृष्णा. सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. लंच का समय हो गया. और आज हम सबों के बीच आप सभापति की कुर्सी को जीनत बख्श रहे हैं. मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सेहत व आफियत के साथ इस सदन को आगे बढ़ाते रहें. और बड़ी खुशी होती है जब मुझे बैठाल कर कोई मेरी तारीफ करता है और सच्चाई बयान करता है. और कितना खुश हूं कि आप बैठे इस जीनत भरी कुर्सी पर हैं और सारे लोग आपके ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं. कि बराही बहुस्न खूबी का मौका है. बहुत बहुत शुक्रिया. इमरान प्रतापगढ़ी. आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है. खैर मकदम है. ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूं. पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं. उसमें आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरा सबसे कम उम्र का सदस्य हूं. तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है. इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं. ऐसे में देश चाहता है कि यहाँ अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो. और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं. राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं. तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहाँ से आवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें.
क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और ये देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। अन्य सभापति महोदय, आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। क्या आप इस उच्च सदन के सभापति के रूप में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमें याद दिलाया कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। मुझे याद आ रहा था एक अंग्रेजी फिल्म स्टार वॉर्स, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हुआ था, मे द फोर्स बी विद यू। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने आपको चक्कर में ना आने की भी सलाह दी। अभी अभी एक युवा सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि सदन अच्छा बने, अच्छी तरीके से चले। आपकी जिम्मेदारी तो हम सबका ख्याल रखने की है। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ में, और मेरा विश्वास है आज जो अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, जिस प्रकार से उत्साह के साथ सबने आपका स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में हम यही भावना हमारे कार्यकाल में भी रखें, काम में भी रखेंगे। और क्लियरली आपके साथ लगभग सभी सदस्यों का मिलना जुलना हो चुका है। एक ना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इट्स अ जॉय टू बी विद यू, टू मीट यू, टू एक्सचेंज नोट्स विद यू, टू टॉक टू यू। अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर दिल्ली आए। पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजन्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस सदन की काम की महत्वता देखते हुए हम सब कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र भी है, जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके आज इस उच्च पद तक की जर्नी ट्रैवर्स की है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी, अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की। शायद यू मस्ट हैव बीन द यंगेस्ट to become a senior advocate in the Supreme Court within 11 years of your practice. मैं समझता हूँ शायद उस समय जजेस ने भी कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसा अलग देखा होगा, जिसके कारण आपको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से स्थान मिला और बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय से आपको दी गई। एक नई परंपरा जो अब इस देश में स्थापित हो रही है, बड़े सामान्य घर से सामान्य जीवन बिताने वाले सामान्य साधारण परिवार के राजनीतिक नेता या समाज के नेता आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर थे, छोटे से स्कूल में टीचर के पद से ओडिशा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में, आज बताया गया, सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर
रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी, और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं, और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है, और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि behind every successful man there is a force, a power, और वो पावर आपके घर में हमने देखा। हम सबका मैं समझता हूँ ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा। और मैं समझता हूँ बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा, और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती है कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए या सिलेक्ट कमेटी में जाए। स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस, पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो, और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में, तो जरूर कोई ना कोई उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी समय की इम्पोर्टेंस है। और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है, आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है, और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है। और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सबका मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून, और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सटेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों
और सभी बाकी सदस्यों की। जब सर्वसम्मति से एक कानून पारित होता है तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के और हर सदस्य के आत्मसम्मान की आपने उस दिन चिंता की, आपने इंश्योर किया कि हमारा भी एक प्रकार से हौसला बने कि हम आगे चल के भी कानून देशहित और जनहित के बनाते रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके जो 2 ओवरसीज विजिट्स रहे वो भी वास्तव में हम सबको बहुत गौरवान्वित करते हैं। आपको देखते हुए वहां पे बड़े बड़े विश्व नेताओं के साथ चर्चा करते हुए, और बाद में मुझे जानकारी मिली आपने किस बहुत तीव्रता से जो देश ने कोविड की महामारी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से जो कल ही उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात का उल्लेख किया गया, जिस बात की तारीफ की गई कि कैसे पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब ने मिलके कोविड महामारी के सामने लड़ाई लड़ी, कैसे केंद्र सरकार ने भुखमरी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के कोने कोने तक 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का जो काम किया, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी विस्तार से तारीफ हुई है। आपने ये बात जब विश्व नेताओं के सामने और विश्व के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नेताओं के सामने जब आपने रखी और आपने बताया कि उन्होंने सबने तारीफ की भारत की, तो मैं समझता हूँ हर मेंबर का, हर सदस्य का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम सबका भी उसमें एक छोटा योगदान है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ when great people set the direction, others follow them. Under your leadership, we will work with the high ideals, high principles with which you will set the direction. And I'm sure the work of the Rajya Sabha, the work that we do in this upper house, the House of Elders, the House of States, will also resonate in the other houses, in the other assemblies across the country. I'm sure the way we are all working for a developed India, we are all working to take prosperity to the last man at the bottom of the corridor, the last man at the bottom of the pyramid, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अंत्योदय की भावना से आज हम सब काम कर रहे हैं कि देश में कोई वंचित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, समाज के हर वर्ग का बिना भेदभाव से उत्थान हो। उस काम में पूरा देश आज देश में भी और दुनिया में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा भी कर रही है, भारत की ओर देख रही है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे 140 करोड़ लोगों में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उससे पूरा विश्व आकर्षित भी होता है और उनको उम्मीद भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में मैं समझता हूं इस सदन की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी बुद्धिमत्ता से हम पूरे देश को ऐसा संदेश देंगे कि हम एक अच्छा सदन अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और जो देश के करोड़ों लोगों की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के हर सदस्य के बिहाफ पे कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का जरूर निर्वहन करेंगे और इस सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपका पुनः इस आसीन पर पद ग्रहण करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Leader of the House, Shri Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji,
Honorable former Prime Minister Sri S.D. Devgowda ji, Honorable Ministers, Honorable Leaders of respective parties, Honorable Members. Deeply moved and touched by the indulgent words of welcome by the Honorable Prime Minister, Honorable Leader of Opposition, Leader of the House, and those who followed. Grateful to the Honorable Members of Parliament for affording opportunity to be in service of Bharat as Vice President of India and Chairman of this august House. Looking forward to contributing to growth trajectory of the largest vibrant democracy in the world and vindicate its trust and confidence. Honorable members, availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this august House. Terms Upper House and House of Elders, though not part of the official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the House of Elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy, exemplifying the highest deliberative, emulative standards. Today, as we are in Amritkal, we cherish one of the world's finest constitutions as our own. Members of the Constituent Assembly were enormously talented with impeccable credentials and immense experience. The Constituent Assembly, given the scenario then, was as representative as was practicable. Honorable members, with each election, there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient. Presently, the Parliament reflects with authenticity the mandate and aspiration of the people as never before. Honorable members, Constituent Assembly addressed sensitive, complex and critical issues, exemplifying sublimity, engaging in dialogue, discussions, deliberations and debate, marked with cooperative and consensual attitude. Diverse issues were traversed without there being any disruption, any rancor. Obstruction and disruption of proceedings of parliamentary practice or option are antithetical to democratic values. Contemporaneous scenario on this count is concerning and makes it imperative for us to follow the high standards set in the Constituent Assembly. We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy. Honorable members, democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary, and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary, and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This House is eminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality
amongst these wings of governance, I am sure the honorable members will reflect and engage in way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme, not amenable to executive attention or judicial intervention, except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution, envisaged in Article 145(3) of the Constitution. Using this constitutional power to amend, Parliament enacted wholesome structural governance changes to further spinally strengthen our democracy. This has been by way of incorporation of Part 9, 9A and 9B in the Constitution, providing comprehensive mechanism for Panchayati Raj, municipalities and cooperative societies. Honorable members, in similar vein, the Parliament, in a much needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support to the above. On August 13, 2014, the Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously on August 14, 2014, with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This process fructified into a constitutional prescription. After 16 state assemblies out of the 29 states ratified the central legislation, the President of India, in terms of Article 111, accorded his consent on December 31, 2014. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015, by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history, where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. A glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people, of which this House and the Lok Sabha are custodians. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the Parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the Parliament now for over 7
years. This House, in concert with the Lok Sabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty bound to address the issue, and I'm sure it will do so. Honorable members, authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct by high standards of propriety, dignity, and decorum. Time for all constitutional institutions to reflect and give quietus to public display of adversarially challenging stance, trading or exchange of advisories emanating from these platforms. I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. Honorable members, as Vice President, I had the honor to represent the country at the India, ASEAN and East Asia Summits in Phnom Penh, Cambodia on November 12 and 13, 2022, and at the FIFA World Cup inaugural ceremony in Doha, Qatar on 20th November 2022. I share with you my deep sense of pride and satisfaction of the level of respect India commands amongst world leaders and their hope and expectation that our growth trajectory generates global peace and prosperity. Honorable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all in togetherness optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations, and I would do my utmost to come up to your very high expectations. As foot soldier of the Constitution, आप सबको प्रणाम कर कर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करता हूं। I am sharing with you, honorable members, as this session commences, all members will be aware that India has taken over the presidency of the G20 with effect from December 1, 2022. This is a matter of great pride for the entire nation. It is also occurring as we welcome Azadi Ka Amrit Mahotsav. The G20 summit will, of course, be an unparalleled event in our diplomatic history. What is noteworthy, however, is that the almost 200 events at various levels will be spread across the length and breadth of the country. It will provide an opportunity to showcase India's rich and diverse culture, to demonstrate the vigor of our democracy and to highlight the progress of our development. We should all appreciate that broad sections of the society are being involved through a Jan Bhagidari approach. During the challenging times in global affairs, it is appropriate that we have chosen the theme, I quote, "One Earth, one family, one future," unquote. This is much in keeping with
our traditional belief in Vasudhaiva Kutumbakam. Such a conviction of our global oneness will surely guide the shaping of the agenda and achievement of outcomes. I am sure that the entire House joins me in expressing our fullest support for the success of India's G20 presidency. The House stands adjourned for 1 hour. आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट